So for the second half, we'll start with the first panel discussion. That's going to be upon rural healthcare. The moderator for the session will be Ms. Pooja Biraya, Principal Correspondent, The Week Magazine. The panels for this session will be Dr. M.K. Singh, Dr. Suryakant, Dr. Archana Singh. So with this, can we invite our moderator on the dais along with respectfully all our three panel members, please? I guess why so less clapping? Okay, everyone, I can understand the sessions after lunch are the most difficult to deal with. So why don't we give a nice stretch? Both hands up. Both hands up. Give a nice stretch. Come on, everyone. A nice stretch. Now, we can see both hands are up. With these two hands, we can use to clap. Come on. Louder one. Okay, over to Pooja now. Thank you. Hello and welcome once again. So we are back on yet another session on healthcare. Initially before lunch we had health and wellness, the way forward. This time we'll be speaking about rural healthcare. I hope you all are all sufficiently re-energized for the session and we can begin now. Doctors, thank you for joining us on the panel. And let's start with our session on rural healthcare. So, given the regions in wherein you all practice, your own practice, and you with your own specialty, tell us about your own experiences over the years as a practicing doctor. What have been your observations so far? Maybe if we could just, yes, we will start with ma'am, of course, first. If we could just bring it down to five main points, that would be great. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Archana Singh. I'm a psychiatrist. So when we'll talk about rural mental health, I will talk from mental health perspective. If that's okay. When we talk about mental health professionals, the challenges we experience are multifaceted and multifactorial. To start with individual choices, there is a significant lack of education and awareness in fields of mental health. Mental health usually comes at last. Majority of our population fail to understand what kind of symptoms they experience as a mental health disorders, where to go for treatment and how to address them. And by that, they are mostly diverted to non-professionals for their treatment, which further deteriorates their condition. I always say that all the psychiatric and maybe other illnesses are always bio, psycho, socio, political illnesses. Individual factors more are like stigma associated with these disorders. There is a lot of reservations to address and acknowledge these issues. Whenever we have any other illness, we talk about it freely, openly, we take education, we take advices from others, and then we reach to a proper place where they can be treated. When it comes to mental health, the moment someone experiences something is not right in terms of mental health perspective, they start holding their disease. They stop talking about it, they hide it, and a significant time has usually passed during these particular times. So awareness and stigma to major individual factors are there. Then coming to socio-cultural factors. Our culture, in many cultures, these things has been from very long past acknowledged as maybe sin, maybe having some religious connotations. And because of this, addressal with professional is usually not possible at the first phase. Other is the way society has portrayed mental illness, the way society accepts. These are the patients who fail to accept because usually mental illnesses comes with a burden of losing insight. They don't understand they are ill. The other people in the surrounding may bring them to the person. But the society per se, the way they understand and accept these illnesses are equally deficient. Probably you have a lot of media friends over here. The way it has been portrayed in our films and media is equally disappointing, and it has created a lot of stigma again. So already burdened with mental illness, when the society themselves don't accept it as a challenge, as a disorder which can be treated, these patients usually have more burden to address, and they actually are left behind. Coming to political issues, usually
usually our governments are not concerned much. Many places in our place, when I talk to the rural setup, even the government's commitment for health is low. When it comes to mental health, it's still lower. So these patients are usually not into the purview of anyone who can bring changes to us, who can bring changes into their life. And they are the ones who need most support, as because of their mental illness, they are not having insight, they cannot grow, their growth, job opportunities, everything has been slashed and declined. So these are the factors. Almost everywhere has been a challenge to address. In rural setup, these challenges are more because of the lack of resources also. Not lack, but unequal distribution can be a better word to say. Where there are resources, they usually don't have reach. Where they stay, we don't reach. So this brings a lot of gap. And there was a survey which was conducted by one of the leading institutes, it's NIMHANS, we all know about it. Around 87% gap has been reported in mental health illnesses and their treatment. This is a huge area. Overall, and even the larger burden is on rural areas. With this, I'll finish up. Yes. Thank you, Doctor. Yes, Doctor. Let us hear your own observations as well. Mic working? Okay. ओके, आज का टॉपिक जो है रूरल हेल्थ, तो मैं डॉक्टर एम.के. सिंह बिल्कुल रूरल हेल्थ से ही जुड़ा हुआ हूँ। पटना से 40 किलोमीटर दूर महुआ एक छोटी सी जगह है और पिछले 30 वर्षों से वहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अपना सारा सेटअप वहीं पर है और रूरल हेल्थ में क्या चैलेंजेज हैं मैं बखूबी समझता हूँ, जानता हूँ। PMCH से पास आउट होने के बाद, MS करने के बाद चॉइस तो थे कि पटना में रहें कहीं रहें, लेकिन मैंने चुना और आज पिछले 30 वर्षों का जो अनुभव है रूरल हेल्थ का, वो यही है कि सबसे बड़ा चैलेंज है वहाँ शिक्षा की कमी, गरीबी और अंधविश्वास। ये तीन चीज बहुत प्रॉब्लम है। अब शिक्षा की कमी है तो उसको कोई भी कहीं भी बरगला दे सकता है। पेशेंट को नहीं पता कि किस बीमारी के लिए किस डॉक्टर के पास जाना है। बीच के जो मेडिएटर्स लोग हैं वो अपने स्वार्थ में कहीं से कहीं पहुंचा देंगे और उनका जो वारा न्यारा होना है सो होगा। गरीबी ऐसी है कि डॉक्टर को फीस देना पड़ेगा तो उसके डर से गांव के क्वैक से दिखवा लेंगे। गांव के जो मेडिकल शॉप हैं छोटे छोटे, वहां से कुछ मेडिसिन लेके खा लेंगे और बीमारी खराब करेंगे और खराब करके आते भी हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अंधविश्वास ऐसा है कि हर बीमारी में पहले झाड़ फूंक वाले को कंसल्ट करेंगे, उसके बाद डॉक्टर के पास आएंगे। सांप भी काट लिया तो पहले झाड़ फूंक में जाना है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो झाड़ फूंक में जाना है। तो इन सारी चीजों को झेलते हैं। पिछले 30 वर्षों का ये अनुभव है। मेरा अच्छा वहाँ सेटअप है, हॉस्पिटल है 30-40 बेड का, तो अनुभव है। आज फैमिली लोग जुड़े हुए हैं और एक विश्वास कायम किए हैं। लेकिन हुआ ये कि अब MBBS MS आपकी जो भी डिग्री है वहाँ के लिए आप स्पेशलाइज प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वहाँ के पेडियाट्रिशियन भी हम ही हैं, फिजिशियन भी हम ही हैं, सर्जन भी हम ही हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हम ही हैं। उसके बच्चे को भी देखना है, उसको भी देखना है, बाप दादे को भी देखना है। और उनका विश्वास इतना है कि वो आप ही से दिखलाएंगे। आप उनको हटा नहीं सकते कि तुम बच्चा के डॉक्टर को दिखला लो या वहाँ चले जाओ, ना डॉक्टर साहब यहीं से ठीक होता है, यहीं से देखना है। तो अपने आप को रूरल हेल्थ में प्रैक्टिस करना है तो इतना बिल्टअप करना होगा कि आपको सारा नॉलेज लेके रखना होगा। वहाँ के लिए सर्जन भी आप ही हैं, एनेस्थेटिस्ट भी आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं और उनकी जिंदगी आपके हाथ में। उनका विश्वास इतना है तो उस विश्वास को कायम भी रखना है। लेकिन गरीबी का हम क्या कर सकते हैं? हम तो यही कर सकते हैं कि हमसे जितना हो सकेगा करेंगे। अभी हमने वहां देखा कि क्या आखिर डॉक्टर के पास आने में क्या डर है, तो डॉक्टर को फीस देना पड़ेगा। मान लीजिए हमारा कंसल्टेशन फी 400 रुपया है तो 400 उनको मायने रखता है। हमने सोचा इस भ्रम को दूर करो। मैंने वहां सर्वे कराया कि कैसे पहुंचे, तो 30,000 जीविका लोग हैं, हमने पता कराया अपने एजेंसी से। हमारे पंचायत में महुआ में 30,000 ये कुछ सोशल वर्क करती हैं। तो हमने कहा कि 30,000 कूपन छपवाओ और इन लोगों को दिलवा दो। ये फ्री कूपन है, आपका लाइफ टाइम चलेगा। जो भी इस कूपन को लेके आएगा उसका कंसल्टेशन फी नहीं लगेगा।
तो मैंने बंटवा दिया। अब उसका लोग लाभ उठाते हैं, उस डर से लोग नहीं आते हैं, आते हैं मैंने फीस नहीं देते, उनका कंसल्टेशन फ्री हो गया। तो मैं करता हूँ, मेरे यहाँ ऑलमोस्ट 50% पेशेंट फ्री कंसल्टेशन वाले हैं। तो हम जो कर सकते हैं सो करते हैं। उनके लिए कंसेशनल जांच हो जाएगा, ऑपरेशन की जरूरत है तो कंसेशनल हो जाएगा। तो जहां तक मेरी क्षमता है वो मैं करता हूँ। आफ्टर ऑल मैं सरकार नहीं हूँ, मैं तो वो एड नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो मेरे बस में है सो मैं कर लेता हूँ। इसके बाद भी हुआ कि रेफरल मरीज जो पटना जाएंगे उनका क्या होगा, वहां तो वो लुटा जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि पटना में भी कुछ ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जो गरीबों के लिए काम करे। तो हमने अपने प्रयास से धीरे धीरे प्रयास किया। आज बहुत फख्र है, गर्व है कि हमने एक ऐसा हॉस्पिटल अपने ग्रुप को बना के किया है जिसमें 80 डॉक्टर हैं हमारे पार्टनर, और एक बड़ा हॉस्पिटल एम्स के बगल में धम हॉस्पिटल के नाम से चालू है, और उसका एक बड़ा हॉस्पिटल 250 बेड का बन रहा है। जो छोटा हॉस्पिटल है उसमें हमने आईसीयू का चार्ज पूरे पटना में 5,000 प्लस लगता है, 5,000, 8,000, 10,000। हमारे धम हॉस्पिटल में 1,800 रुपया मात्र लगता है आईसीयू का, और एकदम बाहर डिस्प्ले किया हुआ है, किसी को इससे ज्यादा नहीं लगेगा। पेशेंट सेल्फ एकदम आते हैं, जो एक बार आया दोबारा आता है, दोबारा रिलेटिव को भेजता है। डिस्चार्ज में बना देता हूं तो उसके बाद ही मरीज बोलता है डॉक्टर साहब 2 दिन और रह के देख लेते, तब जाते। उसको कुछ बिल ही नहीं भारी बुझाता है। जनरल वार्ड में 650 रुपया में रहना है, पूरा फुल्ली एसी जनरल वार्ड है, खाना पीना सहित 650 रुपया में काहे को जाएगा, छुट्टी के बाद भी 2 दिन और रहता है। तो ये प्रयास है कि मैं जो कर सकता हूं, और 80 लोग का मतलब है कि वो 80 डॉक्टर पूरे बिहार से हैं हमारे, तो उनका रेफरल हो गया। जो गरीब है भेज दो, जो अमीर है जहां जाना है जाएगा। गरीब आदमी आप भेज दो वहां, उसको तो लगभग लगेगा कि सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। हम एम्स के बगल में हैं, एम्स में भी आईसीयू का 2200 लगता है, हम तो 1800 लेते हैं, तो उससे भी तो सस्ता है। तो सरकार से सस्ता इलाज करते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो ये प्रयास करने की जरूरत है। हमारे बहुत डॉक्टर बंधु हैं यहाँ, ईमानदारी से प्रयास करने की जरूरत है। आदमी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये बात है, अगर सब लोग ईमानदारी से प्रयास करें बहुत कुछ हो सकता है गरीबी के लिए। तो रूरल हेल्थ का ये चैलेंज है, उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो मैंने बताया। थैंक यू। Thank you so much, doctor. Very important point. Yes, doctor, your experience, please. Thank you, Pooja ji. Thank you very much. The week and the organizer Dinesh Anand Production. तो दिनेश जी ने, I'm Dr. Surikant, working as a professor in the health department of respiratory medicine at King George Medical University, Lucknow. तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, और दिनेश जी ने सबसे बड़ा चैलेंज मुझे दिया है कि हम बात करेंगे रूरल हेल्थ केयर पे। अब ये उन्होंने क्यों दिया है, मेरी दोस्ती, वो अपनी दोस्ती निभा रहे हैं या पता नहीं क्या निभा रहे हैं, दिनेश जी दिख नहीं रहे मुझे। एनीवे, तो डॉक्टर एनके सिंह साहब को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने अप्रोच बताई है रूरल हेल्थ की। इसके पहले हम रूरल हेल्थ की बात करें, एक प्रोफाइल में आपके सामने रखता हूँ। देश में 7 लाख से ज्यादा गाँव है। हमारे देश में 13 लाख के करीब मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी, जिसको सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं, वो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं जो एनएमसी में हमारे रजिस्टर्ड का हमारे पास जो डेटा है। करीब 10 लाख के करीब आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, आयुष के चिकित्सक हैं। तो आयुष, एलोपैथी, मतलब जिन पे हम डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल डॉक्टर, सबको अगर हम मिला दें तो हमारे पास केवल 23 लाख डॉक्टर्स हैं। गांव कितने हैं? 7 लाख से ऊपर, और उनमें मरीज कितने होंगे, उनकी पॉपुलेशन कितनी होगी, आप समझ सकते हैं। पहला हमारे पास जो डिस्पैरिटी है, नंबर 1। दूसरी डिस्पैरिटी क्या है, वो है रूरल अर्बन डिवाइड। हमारी ये जो 10 लाख डॉक्टर हैं, खासतौर पे अभी जो नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स निकलते हैं या और यंगर जनरेशन है, तो या आप मान लीजिए कि इवन एम्स से निकलते हैं, तो एम्स से 30-40% डॉक्टर, मान लीजिए एम्स दिल्ली से जो निकलते हैं, अभी तो 25 एम्स हैं, लेकिन एम्स दिल्ली से जो निकलते हैं वो 30-40% डॉक्टर वो कहाँ चले जाते हैं, वो ब्रेन ड्रेन हो जाते हैं, वो अब्रॉड चले जाते हैं। तो हमारा जो टॉप क्लास का डॉक्टर है वो कहाँ चला जा रहा है, अब्रॉड चला जा रहा है। उसके बाद का जो मिडिल क्लास का डॉक्टर है वो कहाँ जा रहा है, वो मेट्रोज में चला जा रहा है। उसके बाद जो थर्ड स्टेटा का डॉक्टर्स है वो कहाँ जा रहा है, वो क्लास 2, क्लास 3 इस तरह की स्थिति में आ रहा है। गाँव के लिए क्या बचा, वो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूँ, वो जो कपिल शर्मा कहता है, बाबा जी का फुल्लू।
तो ये समस्या हमारी रूरल के हेल्थ की है कि हमारे पास ये बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है जो हेल्थ सर्विसेज हमारे पास हम दे रहे हैं और जो हम गांव में देना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती अगर आप सब ने झेली हो, मुझे मालूम नहीं कितने लोग कोविड में इन्वॉल्व थे ट्रीटमेंट में, एक बार जरा मुझे प्रोफाइल पता चल जाए कितने लोग थे जो कोविड का इलाज कर रहे थे। काफी लोग थे। तो एक मैं वाकया बताता हूं, जब कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, कोविड की सेकेंड वेव जब चल रही थी, तो आप किसी बड़े अस्पताल में जाइए, आरटीपीसीआर कराइए, कोविड टेस्ट कराइए और तुरंत आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। हमारे यहाँ तो ठीक 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पता चल जाती थी, और धीरे धीरे जाइए फिर 2 दिन में मिलती थी, 3 दिन में मिलती थी। आप सब, मैं आई वाज दी ऑल इन चार्ज ऑफ कोविड अफेयर्स इन 1100 बेडेड कोविड हॉस्पिटल एट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और इसके साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कोविड एक्सपर्ट भी था। ये जो उत्तर प्रदेश के सरकार का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना, जो दुनिया में चर्चित हुआ कि उत्तर प्रदेश ने इतना अच्छा कोविड कंट्रोल किया, फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से आई वाज द एक्सपर्ट फॉर मेकिंग दिस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैंने बनाया था। और जब चुनौती सेकेंड वेव में आई और कि गांव में जब कोई जांच होती ही नहीं थी, तो गांव में धड़ाधड़ मौतें होने लगी। आप सबको याद होगा गांव में धड़ाधड़ मौतें हो रही थी, और गांव में फिर कहा गया कि वो मोटरसाइकिल से जाएगा और वहां से सैंपल लेके आएगा और फिर उसको टेस्ट करेगा, रिपोर्ट देगा, तो उसमें 5 दिन लग जाता। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां जहां कोविड ज्यादा हुआ तो उनको एक ही नाम ध्यान आता था, डॉक्टर सूर्यकांत को भेजो, क्योंकि मेरे पास 1100 बेडेड एशिया का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल में हम लोग देख रहे थे, तो हमारे पास नेचुरली एक्सपोजर और एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया था। तो कानपुर भेजा, आगरा भेजा, मेरठ 2 बार भेजा, और सेकेंड वेव में जब पीक चल रही थी मोर्टेलिटी की, तो हमें भेजा, आप कल्पना कर सकते हैं, मोदी जी के क्षेत्र में वाराणसी। मैं आऊंगा, शायद उन्होंने बार में पढ़ा होगा उस समय। तो जब मैं पहुंचा बनारस में तो वहाँ मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मैंने वहाँ के जितने हेल्थ केयर स्टेक होल्डर्स थे उनकी मीटिंग की, और वहाँ पे मैंने डिसाइड किया, तभी उसी समय WHO और ICMR की तरफ से एक नया शब्द आया, प्रिजम्पटिव कोविड। आप शायद भूल गए हो, 3 साल में, तो मैं याद दिलाता हूँ, व्हाट इज द प्रिजम्पटिव कोविड। तो कोविड का ये था कि भाई कोविड के लक्षण है, टेस्ट करिए, टेस्ट में पॉजिटिव आ जाए तो ट्रीटमेंट करिए। यही हर बीमारी में होता है, कोविड में भी यही सरकार कर रही थी। तो अब RT-PCR जिसको हम टेस्ट का कहते हैं, उसकी सेंसिटिविटी थी 70%, अर्थात 100 कोविड के मरीज का अगर हम सैंपल देंगे, अगर 100 को कोविड है तो पॉजिटिव रिपोर्ट केवल 70 को आएगी, 30 को नहीं आएगी। टेस्ट है, जांच है, उसकी एक लिमिटेशन है। तो एक शब्द आया प्रिजम्पटिव कोविड। डॉक्टर को अगर लगता है कि ये कोविड है और RT-PCR निगेटिव आ गया है, तो भी कोविड का ट्रीटमेंट देना है, ऐसा गाइडलाइन में आ गया। तो मैं जब तक बनारस पहुंचता, वहां रिप्रेजेंटेटिव थे, वो आप सब लोग जानते होंगे, डॉक्टर AK शर्मा उस समय MLC थे, अभी तो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सो उनका मेरे पास मैसेज आया कि डॉक्टर सूर्यकांत, वी आर वेटिंग एट सर्किट हाउस वाराणसी टू रिसीव यू एज एक्सपर्ट। तो मैंने कहा कि मैं एक तो बनारस, एक तो ऐसे ही धक धक बढ़ रही थी, वही प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भेज दिया, और सिंगल मेंबर एक्सपर्ट कमेटी। मैंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा भी कि मेरे साथ 2-3 डॉक्टर तो और दे दो, बोले हैं ही नहीं हमारे पास, 30% डॉक्टर तो पॉजिटिव चल रहे हैं कोरोना के, मैं किसको भेज दूं। तो जब मैं पहुंचा तो मैंने रास्ते भर मंथन करता रहा, क्या करूं क्या करूं। तो मैंने रात में उसी से एक फॉर्मूला निकाल लिया। और अब ये देखिए, कहते हैं कि चुनौती में ही अवसर मिलता है, तो अवसर बहुत, आप जो डॉक्टर नहीं है वो भी समझ जाए कि मैंने कैसे रास्ता निकाला। कोविड टेस्ट आपने किया, निगेटिव आ गया, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से क्लिनिकली उसको कोविड लग रहा है, तो उन्होंने कहा इसको डिक्लेयर कर दिया प्रिजम्पटिव कोविड। तो कोविड का ट्रीटमेंट देना है। डॉक्टर को लग रहा था, जांच रिपोर्ट निगेटिव आ गई, ट्रीटमेंट कोविड का दे दिया। अब गांव वाले की अगर हम जांच का रिपोर्ट का इंतजार करेंगे तो वो तो 5 दिन में मिलेगी, और 5 दिन में तो आर या पार हो जाएगा। तो हमने वहां फॉर्मूला दिया, मान लो जांच हो गई, मान लो नेगेटिव आ गई, आपको कोविड लग रहा है तो ट्रीटमेंट शुरू कर दो, सो सिंपल। तो 3 दिन के अंदर वहां 70% मोर्टेलिटी कम हो गई। तो अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हिंदुस्तान अखबार या कोई और ऐसा था जिसने कभी बड़ी हेडिंग भी छापी थी हमारी, उसने कहा सर इसका सीक्रेट बता दीजिए जो आप देखेंगे। मैंने कहा ना जांच ना रिपोर्ट, करो कोरोना पर सीधी चूक।
हर गांव में एक पल्स ऑक्सीमीटर दे दो, प्रधान जी से कहो कि पल्स ऑक्सीमीटर से नाप लें, जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम है उसे ये हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की 4 दवाएं 5 दिन दे दो, बस कोरोना खत्म। वही फिर मोदी जी का फोटो लगा, फिर पैकेट बना और फिर वो दवाएं बंटवाएंगी गांव-गांव में और 1 हफ्ते में सिचुएशन बदल गई। गांव की चुनौती नहीं है, हमें इसके लिए अलग से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। हम नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम से ऐसे नहीं, हमें वी हैव टू डेवलप द स्पोक एंड हब मॉडल। जब तक हमारे पास स्पोक एंड हब मॉडल बहुत सिंपल होता है कि जैसे एक पहिया होता है, उसमें बीच में एक धुरी होती है और स्पोक्स होती है, यानी ताने होती है। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो एक हब का काम करे, या हम कह रहे कि मान लीजिए आपका शहर है, जैसे डॉक्टर साहब का बनारस है, तो वहाँ तो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल भी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, तो वो सब लोग हब का काम करें और हमारी स्पोक्स जो है ये फिर सीएससी पर, पीएससी पर और जो हमारा सब सेंटर है वहाँ, और गांव में भी जो एएनएम और आशा बहू बैठी है वहाँ। हम प्रधान को इतनी चीजें सिखाते हैं, हम प्रधान को इतनी चीजें नहीं सिखा सकते हैं क्या कि भैया पोस्टर लगा दो पूरे गांव में, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो 2 बार टीबी की जांच कराओ। सिंपल है। क्या गांव अगर ये पोस्टर 4-10 भी गांव में लग जाए तो क्या कोई ऐसा हो सकता है कि कोई टीबी का मरीज जो है वो 6-6 महीने तक उसकी डायग्नोसिस नहीं बन रही है? सिंपल पोस्टर लगा दीजिए, बिल्कुल बहुत 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो 2 बलगम की जांच कराओ। और ये बलगम की जांच प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है, उसमें फ्री जांच होती है, फ्री इलाज होता है और साथ में टीबी का इलाज जब तक चलता है मरीज को 500 रुपया महीना मिलता है। लेकिन ये जानकारी गांव के प्रधान को नहीं है, ये जानकारी गांव की आशा को नहीं है। और तो और छोड़िए, रूलिंग पार्टी के मैं 277 एमएलए हूँ, उन 277 एमएलए से पूछ दूँ कि ये जानकारी आपको है कि 500 रुपया महीना टीबी के मिलता है, तो उसमें शायद 250 एमएलए नहीं बता। तो ये चीज एक जो डॉक्टर साहब ने कही थी, मैडम ने कही थी कि अवेयरनेस ऑफ द डिजीजेस एंड अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज। हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी जो अवेयर है, हम डॉक्टर नहीं पहुंचा पाते हैं, हम डॉक्टर हर गांव में नहीं पहुंचा पाते हैं, हम पहुंचा भी नहीं सकते। अब कहते हैं कि हर डिलीवरी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी होनी चाहिए। तो एक बार मैं मुख्यमंत्री जी के साथ एक मीटिंग की होती है उसकी नेशनल हेल्थ मिशन की, तो मैं उस समय आईएमए लखनऊ का प्रेसिडेंट था, तो मैंने उन्हें आंकड़ा पेश कर दिया। मैंने कहा यूपी में इतने गायकोलॉजिस्ट हैं और इतने यूपी में डिलीवरी हो रही है, ये कैसे करवा पाए? तो बोले क्या मतलब? तो मैंने कहा साहब हम पैदा हुए, हमें तो गायकोलॉजिस्ट नहीं पैदा किया, डॉक्टर सहजानंद सर पैदा हुए होंगे, इन्हें तो गायकोलॉजिस्ट नहीं पैदा किया। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग था हम उसको खत्म क्यों कर दे रहे हैं? किस कीमत पे? उसको अपडेट करिए, उसको अपग्रेड करिए। गांव में उस दाई जो ट्रेडिशनल काम कर रही है उसको ट्रेन कर दीजिए, एक एम्बुलेंस खड़ी कर दीजिए ग्राम पंचायत पर और उसे बता दीजिए कि कौन सी डिलीवरी तुम करा सकती हो और कौन सी नहीं करा सकती हो। जो नहीं करा सकती हो वो एम्बुलेंस में बिठा दो, जो करा सकती हो वो तुम कर दो। तो हमें गांव के स्वास्थ्य के बारे में आमूल चूल परिवर्तन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है कि वन वे ट्यूबुलर विजन हमने सोच रखी है, मेडिकल कॉलेज बढ़ाओ, अस्पताल बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, ये बढ़ाओ। दूसरा एस्पेक्ट है कि मेडिकल आजकल लोगों में, अभी महेश साहब कह रहे थे कि जैसे हम बीमारी का नाम लेते हैं केवल एलोपैथी क्यों याद आती है। मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, मैं खुद इसको एक्सेप्ट करता हूँ। चिकित्सा की विधा केवल एलोपैथी नहीं है, हमें हर विधा को उचित सम्मान देते हुए, और सरकार कर रही है। सरकार ने आयुष मंत्रालय अलग से बनाया है, आयुष विभाग पहले हुआ करता था एक हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर छोटा सा, अलग से मिनिस्ट्री बनाई, अलग से तवज्जो दी जा रही है। हर एम्स में कंपलसरी कर दिया गया है कि आप एम्स को चलाएंगे और साथ में आयुष सेंटर भी चलाएंगे। तो हमें हर विधा के साथ को, हमें हर डॉक्टर के साथ को लेके और ये डिवीजन दे देना है कि भाई देखिए 3 चीजें हैं जिसके लिए एलोपैथी अनअवॉइडेबल है: ट्रॉमा, इन्फेक्शंस एंड इंटेंसिव केयर। ये चौथा है सर्जरी। 4 चीजें ऐसी हैं जो वहां पर एलोपैथी अनअवॉइडेबल है। आप इसके अलावा, मैं तो एक बार कहा डिबेट में किसी को, मैंने कहा एक बाबा है, बहुत लोग और उसको कहते हैं, डॉक्टरों को मॉडर्न मेडिसिन को गाली देते हैं, भगवान ने करे कि उनको गोली लग जाए तो कौन से प्राणायाम से गोली निकालेंगे, हमको बता दें। मेरा 10 मिनट का यूट्यूब पे देखिए, मेरा वीडियो है, इंटरव्यू है इसी में, मैंने बाबा का नाम नहीं लिया, आज भी नहीं ले रहा हूँ। मैंने कहा भगवान ना करे खाता ना खास्ता उनको गोली लग जाए तो मुझे बताइए कौन से प्राणायाम से आप अपनी गोली निकालेंगे। भाई प्राणायाम की महत्ता है, मैं मानता हूं, लेकिन सबको हमें कोऑर्डिनेशन के साथ चलना है। हमें इन्फेक्शंस के लिए,
हमें सर्जरीज के लिए, हमें ट्रॉमा के लिए, हमें इंटेंसिव केयर के लिए हमें एलोपैथी ही इस्तेमाल करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डायबिटीज में क्या करते हैं, हम दवा देते हैं। हमारे पास पैंक्रियाज में बीटा सेल जो प्रोडक्शन हाउस है इंसुलिन का, हम उसको चैलेंज करते रहते हैं और 10-20 साल बाद जब बीटा सेल्स एग्जॉस्ट कर जाती हैं फिर हम मरीज से कहते हैं अब हम इंसुलिन देंगे, और फिर इंसुलिन से भी रेजिस्टेंस हो जाता है तो हमारे सामने हाथ खड़े हो जाते हैं, फिर पेशेंट किडनी फेलियर हो जाता है। बात ये नहीं है कि एलोपैथी गलत कर रहा है, बात ये है कि एलोपैथी का सिस्टम ही ट्रीट करने का है। तो हम क्यों न कहें आयुर्वेद भाइयों को, होम्योपैथ भाइयों को कि भाई आप इस पर रिसर्च करिए, इस पर प्राइड करिए कि आप डायबिटीज का ट्रीटमेंट करिए ना, उसको चैलेंज के रूप में लीजिए। आप स्किन डिसऑर्डर को लीजिए, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर को लीजिए, ऑटोइम्यून डिजीज को लीजिए, एलर्जिक डिसऑर्डर को लीजिए, इन सबको लीजिए और इनको चैलेंज आप कर लीजिए, एक बंटवारा कर लीजिए। ये हम देखेंगे, ये आप देखिए, एक दूसरे से हाथ मिलाइए, देश को भी स्वस्थ करिए, गांव को भी स्वस्थ करिए। Very interesting thoughts there by all of you. Thank you. So now, what we will move on towards is we will come to a very specific things right now. Starting with, I would like to ask you all, to narrate any one anecdote of a particular case study of any particular patient who came to you, and you were either surprised, shocked, or startled by the condition in which the patient came to you, by the diagnosis that you made, and such on, right? So tell us about one particular case study that has really hit you hard in the heart and in the mind. Starting from, yeah. मेरा तो फील्ड ही कहानी हो गया है। Mental health is very important now that we see. We see a lot of cases which are usually disheartened. Bringing it to one is difficult, but we'll let you know. There was around 6 years back, person, a kid who was around 18 or 19 when he was brought to us. For 12 years, he was chained to a tree. Because in the childhood he was diagnosed with autism and ADHD, which is a childhood disorders in psychiatry. So people had difficulty, his parents and people have difficulty understanding him because he was highly notorious. He used to do a lot of mischievous things. आसपास में बहुत सारी शैतानी करता था, which they find unable to control. तो all the faith healers they tried, सारा कुछ इधर उधर से करने के बाद they could not find a solution but to tie him. So he grew. For 12 years, the child was growing tied up in the rope, in a chain. Okay, inside the house. हाँ, inside the house. गांव में आंगन जैसे घर होते हैं, तो आंगन का जो पेड़ था, उससे वो बांध के उसको रखते थे, so that he don't disturb the neighborhood. Right. No, meaning not near a hospital or anything. No, not in the hospital. In the village, in their house. वो घर में उतने टाइम तक बंधा हुआ था, and subsequently later on during our camp somewhere. कैंप के दौरान किसी ने एक बार बोला, तो वी वेंट एज अ टीम. आई वाज वर्किंग इन द गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल देन, और उस समय व्हेन वी वेंट एज अ टीम, हमने वहाँ से उसको चेन से छुड़ाया. वी एडमिटेड हिम इन अ हॉस्पिटल फॉर सम टाइम, एंड यू विल नॉट बिलीव, फॉर 2-3 months ट्रीटमेंट he was perfectly better to be into the society as a normal being. Of course, disease, not totally cured from his illness, but कंडीशन में था कि सोसाइटी में इंटीग्रेट किया जा सकता था. सो इफ ये और 12-14 साल पहले अगर वी कुड हैव रीच्ड हिम, उस समय से he would have been educated and he would have been productive, and those years, the important years, childhood would not have gone waste. Yeah, that was one case which really shook all of us, and it was very near to the mental hospital, not far, around 15-20 kilometers near to the mental hospital where state run mental hospital is running. उसके नज़दीक में, so it's like कि हमारे नियर बाय में भी इतने केसेस हैं और इतने पेशेंट्स हैं जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से लाइफ्स आर गेटिंग रूइंड. This is one I could remember which had impacted us deep. And from then onwards, we started percolating into these rural setups. That was the point. Rural mental health we picked up. Still, I'm going to various villages. I put various camps. I have one clinic into the rural area where I go often and see patients. Very shocking indeed.
Thank you, ma'am. Thank you for sharing. Yes, doctor, you will also share with us one single anecdote of a case study that has impacted you. मेरे पास 1 नहीं है, 100 है, क्योंकि हम तो But ऐसे of जगह them, से one. ऐसे जगह से जूझते हैं कि मैं आपको क्या एग्जाम्पल दूँ। हर हफ्ते हर दिन कुछ न कुछ आएगा। अभी अगर रिसेंटली बताएं तो गांव में किसी छोटे लोग खोल लेते हैं अस्पताल या कुछ भी क्लिनिक, कोई डिलीवरी कराया, काबिलियत इतना कर दिया, उसका एपिसियोटोमी भी कर दिया, सिलाई स्टिच नहीं कर पाया, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, 3-4 घंटा झेला, फिर किया, उसके बाद भेज दिया पटना ले जाओ। अब इतनी ब्लीडिंग है कि कहाँ पटना ले जाता, तो उस महुआ में इतना है कि मेरा अस्पताल वो लोग जानता है, अगर कुछ इमरजेंसी है तो वहाँ चले जाओ। तो चला आया और सुबह सुबह 6 बजे स्टाफ की कमी, हम भी सोए हुए, फोन आया सर कुछ इमरजेंसी, आके देखते तो माथा खराब। अब रेफर करने लायक नहीं था, इतना ब्लीडिंग थी। अगर रेफर कर देते पटना, वो रास्ते में गांधी सेतु पे पार हो जाती। तब करो या मरो, तो उस स्थिति में धड़ाधड़ फोन फान सारा स्टाफ जुटाओ, उसको तुरंत करो, हो गया, मैनेज हो गया। ऐसा हमेशा होता है। तो किसको किसको बताएं कि 1 केस को। और भी चैलेंज है बहुत सारा रूरल में। ये सब रूरल के चैलेंज है आपको, कि आपको इतना अपने आप को सक्षम करना होगा। ये आएंगे जब आप थोड़ा सा बढ़िया अस्पताल हो गए तो लोग भरोसा करके आएगा, और अगर आप उसको नहीं कर रहे हैं तो झमेला भी होगा कि डॉक्टर साहब आप जानबूझ के भेज दिए, तो उससे भी बचना है। तो आपको सक्षम तो करना होगा, और हमारे पास भगवान की दया से टीम है, सक्षम है, हम लोग कर लेते हैं उतना काम। एक नया चीज आया जो बताना हम भूल गए। अब इधर इनफर्टिलिटी के केस बहुत, अब मैं तो ऐसा तो कुछ हूँ नहीं सर्जन के रूप में, लेकिन इनफर्टिलिटी के केस बढ़ गए। तो हमने पिछले 10 साल से मार्क किया कि पटना में भी IVF सेंटर्स बढ़ रहे हैं। मतलब कुछ तो बात है, ये कहानी बढ़ रही है, लेकिन सब लोग भाई पटना तो IVF कराने नहीं जाएगा, महंगा इलाज है, और पटना आना जाना गांव से ये मुश्किल है, तो गांव के लोगों का होगा कैसे। और गांव में कोई IVF सेंटर खोलने नहीं जा रहा। पटना IVF वाले लोग आते हैं महुआ कि सर यहाँ हमको एक सेंटर, एक दिन का OPD करने दीजिए, और लोग आके कर जाते हैं, महीना 2 महीना में एक OPD उनका होता है। लेकिन वो क्या है, मरीज को क्या पटना आओ। तो हमने कहा कि भाई यही सर्विस दे दो बिना IVF के। नेचुरल भी होता है। मिसिंग कहाँ है कि आपका दिमाग अगर IVF पे चल रहा है तो आप IVF से ही बच्चा कराओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कंसीव करने के लिए बहुत सारा मिसिंग लिंक है। हस्बैंड का जांच ही नहीं करा रहे हैं, सारा फोकस उसी पे किए हुए हैं, IVF होता रहेगा। आधा गड़बड़ी तो वहीं से है कि किसी को ओलिगोस्पर्मिया है, किसी को कुछ है, तो ट्रीटमेंट तो वहां भी करने दो। किसी को आप टाइमिंग बता ही नहीं रहे हैं कि कब आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, कब साथ रहने वाला है। सीधा फोकस है IVF करो, 2-2.5 लाख रुपया मिलेगा। तो हमने इसको भी डेवलप किया, पिछले 7-8 साल का अनुभव है। 10 में 7-8 लोगों को कंसीव करवा देता हूँ। कुछ नहीं भाई, नेचुरल, ये दवाई खाओ, ऐसे रहो, ऐसे साथ रहो, ये करो, यहाँ कमी है ये करके, ये भी एक बढ़िया है। तो रूरल के लिए बहुत दूर दूर से अब हमारे पास। अच्छा, इसमें और एक फायदा है, आपका एक पेशेंट का हो गया ना, उसके रिलेशन में जहाँ जहाँ मरीज है वहाँ वहाँ बात चली जाएगी कि डॉक्टर साहब के यहाँ काम हो जाता है सस्ते में। तो अब मेरे पास कटिहार से मरीज है, पूर्णिया से मरीज है, दूर दूर की मरीज है, और आके इलाज करा के कंसीव होकर के डिलीवरी करा के चली जाती है। IVF की कहानी और बताते हैं। एक IVF पटना में हुआ, ट्विन। अब ट्विन तो हो गई, खैर तो उसका वो बोल दिया कि जाना ऑपरेशन वहीं करा लेना, मेरे यहाँ मत आना। IVF वाला लोग ऑपरेशन नहीं करता, सिजेरियन नहीं करेगा। तो भेज दिया, हमारे यहाँ हो भी गया, सिजेरियन से 2 बच्चा हुआ। 1 साल के बाद वो फिर कंसीव करके आ गई। तो हम बोले फिर कराई क्या, तो नहीं सर अपने हो गया। तो हम बोले तो IVF काय को हुआ था जब अपने हो सकता था तो ये भी कहानी है। तो रूरल में बड़ा मजेदार अनुभव है मैडम, और हम लोग करते हैं, एंजॉय करते हैं। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आई विल शेयर ऑल ऑफ यू। रूरल का नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंस जो हमारे मेडिकल टीचर्स हमेशा कहते रहे हैं कि चाहे अल्ट्रासाउंड आ जाए, CT स्कैन आ जाए, MRI आ जाए, PET स्कैन आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेशेंट से बात करना, खुल के बात करना। तो अक्सर देखा होगा अस्पताल में लोग कहते हैं सफाई और दवाई 2 पहचान अस्पताल की होती है, लेकिन मेरे फॉर्मूले 3 हैं।
मैं कहता हूँ अस्पताल के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, सफाई, दवाई और सबसे इंपॉर्टेंट, सफाई दवाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या है? सुनवाई। मरीज कहता साहब भर्ती तो हो गए लेकिन सुनवाई कोई नहीं। बस ये मॉडर्न जनरेशन है ना, वो कहता साहब डॉक्टर साहब के पास गए, वो तो मोबाइल देख रहे थे, आईसीयू में बैठे तो मैंने आईसीयू में मोबाइल ही बंद, एक सीयूजी दे दिया, वो नहीं, क्या बोलते हैं उसमें, व्हाट्सएप नहीं चल सकता, सोशल मीडिया नहीं चल सकता, चलो अब करो मोबाइल, सबके मोबाइल जब, और एक सीयूजी फोन दे दिया आईसीयू में, बस भागो यहाँ से, तो जाके वो समस्या सर, वरना आईसीयू में 3 बार अटेंडेंट जा रहा है और वो मोबाइल। तो एक इस इंपॉर्टेंस को देते एक मुझे वाकया याद आ रहा है। एक आईएएस ऑफिसर यूपी के बहुत तेज कर रहा, उन्होंने बीआरएस लिया, वर्ल्ड बैंक के लिए काम करने लगे और उनकी सांस फूलने लगी। 1.5-2 साल वो लीलावती हॉस्पिटल मुंबई, एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ और भी बहुत सारे हॉस्पिटल, फिर वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में गए, वेदांता में, सब जगह। लास्ट में जब उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 82% रहने लगा, जो लोग डॉक्टर नहीं, मैं बता दूं कि 90% से जब ऑक्सीजन नीचे आ जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन वही है जो उंगली में कोविड के दौरान हम लोग नापते थे रीडिंग, तो 90 के नीचे आ जाता है तो वो सीरियस माना जाता है, भर्ती लायक आईसीयू में। तो जब 82 पहुंच गया तो उनकी वाइफ ने कहा कि ये बताओ, कोविड के दौरान हमने सांस के सब मरीजों को कोविड के, एक डॉक्टर साहब टीवी पे देखे हैं, उनका इंटरव्यू आता था, तो उनको क्यों नहीं दिखाते हो, यही लखनऊ में है अपने, कौन? तो उन्होंने मेरा नाम बताया, डॉक्टर सूर्यकांत है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो हम आपको सही, तो एक दिन मेरे पास फोन आया कि मैं ये बोल रहा हूँ, उन्होंने नाम बताने से मना किया, वैसे भी कॉन्फिडेंशियलिटी में आपको जान के ताज्जुब होगा कि मेडिकल एथिक्स ऐसी चीज होती है कि अगर ये मेडिकल एथिक्स ना होती तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। मालूम है किसी को? जिन्ना साहब को टीवी थी लेकिन उनके डॉक्टर ने गांधी, नेहरू, पटेल किसी को नहीं बताई, और उस समय टीवी का कोई इलाज नहीं था, साल या 2 साल बस। अगर पटेल को गलती से पता चल जाता तो पाकिस्तान बन नहीं सकता। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मेडिकल एथिक्स। और डॉक्टर पटेल थे, सोचिए, वो डॉक्टर पटेल थे जिन्ना साहब के डॉक्टर, जो उनका इलाज करते थे, लेकिन मेडिकल एथिक्स से बना हुआ डॉक्टर था, उसने अपनी मेडिकल एथिक्स बनाई। ये अलग बात है कि बाई प्रोडक्ट उसका बहुत खराब निकला, क्योंकि अगर सरदार पटेल पक्का जान लेते तो सवाल ही नहीं था कि पाकिस्तान कहते नेहरू 1 साल का इंतजार कर लो। और वही हुआ भी, जिन्ना साहब 1.5 साल के बाद ज्यादा जिंदा नहीं रह पाए। तो मैं बात कर रहा था तो वो मेरे पास फोन करके आए, तो मैंने एक रेजिडेंट डॉक्टर को कहा, मैंने कहा सुनो, मैं कुछ काम निपटाता हूँ, तुम बढ़िया 45-40 मिनट लाओ, बड़े आदमी हैं और बहुत सोच सिफारिश के बाद आए हैं, इनकी बढ़िया से हिस्ट्री लो। इसलिए उसने कुछ बताया, हमें उसने प्रेजेंट किया, क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज में जब हम काम करते हैं तो अपने एक जूनियर डॉक्टर को पहले जरूर बीच में लाते हैं। कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं कहता, डॉक्टर सूर्यकांत हम तो आपको दिखाने आए थे, आपका नाम सुन के। तो मैंने कहा देखिए, मेरा हॉस्पिटल नहीं है, मेरा क्लिनिक नहीं है, इसका नाम अस्पताल नहीं है, इसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। पहले था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। तो कॉलेज में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में क्या होता है? पढ़ाई। तो पहले पढ़ाई होगी फिर दवाई होगी। तो पहले हमारा रेजिडेंट आपसे हिस्ट्री लेगा, सीखेगा, तब हम देखेंगे, तब ओपिनियन देंगे। हमारा प्राइमरी काम इलाज नहीं है, हमारा प्राइमरी काम पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी है। उसके समझ में आता, हाँ केवल अस्पताल नहीं है, यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई तो होगी। जैसा आप एक दिन बोले, मैंने कहा साहब आप ऑर्डर पास कर दो यहीं पे, लेकिन रजिस्ट्री तो रेजिडेंट को ही देनी पड़ेगी, वो देख। तो लीली उसने प्रेजेंट किया, तो बाद के पर्चे पे लिखा हुआ था एडवाइस लंग ट्रांसप्लांट। तो मैं भी थोड़ा कॉन्शियस हो गया, मैंने कहा डॉक्टर सूर्यकांत ये तो हमने बड़ा आफत मोल ले ली। एक तो तेज तरार आईएएस ऑफिसर, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल आदमी, वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन मेरे पास लेके आया। तो जब मैंने पूरी हिस्ट्री सुनी तो मुझे लगा कि समथिंग इज मिसिंग इन द हिस्ट्री। मैंने कहा सिंह साहब ये बताओ, आपके घर में कोई कुत्ता, बिल्ली, कुछ तोता, मैना कुछ पला हुआ है? हाँ डॉक्टर साहब 4 बिल्लियां हैं। मैंने मतलब आप वो जो मेरा रेजिडेंट खड़ा था ना, उसको मैंने मुर्गा नहीं बनाया, और उसको और पहले बहुत डांटा। मैंने कहा हाउ डिड यू मिस दिस इंपॉर्टेंट हिस्ट्री? कैट का एक्सपोजर है, 4 बिल्लियों का एक्सपोजर है घर में, और तू बता नहीं रहा है। तो मैंने कहा सिंह साहब मुझे एक ही सवाल पूछना था, आप कोई सवाल ही नहीं पूछा, आपकी डायग्नोसिस बन गई। बोले क्या बात कर रहे हो, मेरे पास इतनी बड़ी फाइल है, एम्स दिल्ली की है, लीलावती हॉस्पिटल की है, ये है वेदांत, और लास्ट में मैंने कहा लंग ट्रांसप्लांट आपको नहीं करवाना, मैं गारंटी देता हूँ।
और मैंने कहा मैं 5 दिन की दवा लेता हूँ, अभी आपका 82 ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन आप मुझे दिखा रहे हो बार बार, 5 दिन के बाद ये 90 से ऊपर हो जाएगा। आप 5 दिन के बाद फिर मुझे फोन करके बताओगे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना था। डोंट टेल मी डॉक्टर सूर्यकांत, इतने बड़े आप डॉक्टर अपने को मत समझिए। मैंने कहा भाई मैं बड़ा नहीं समझ रहा हूं, लेकिन मैं डॉक्टर समझ रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर, उसी के आधार पे आपको गारंटी दे रहा हूं। मैंने कहा डायग्नोसिस बन गई, आपका एक्सपोजर है, आपकी डायग्नोसिस है, एक बीमारी कहलाती है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। 200 बीमारियों का एक समूह होता है, उसी में से एक होती है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। और वो बिल्ली जो होती है, बिल्ली के जो बाल होते हैं छोटे छोटे, उससे पार्टिकल झड़ते रहते हैं और वो आप सांस के साथ इनहेल करते रहते हैं, उससे ये बीमारी हो जाती है। तो बोले करना क्या है? मैंने कहा श्रीमती जी को फोन करिए, चारों बिल्लियां हटाएं। डॉक्टर साहब वो रोते रोते मर जाएंगी, अपनी बिटिया तक को एक बिल्ली नहीं दी उन्होंने। आप मेरी बिटियां, हम पत्नी हो। तो मैंने कहा भाई बिल्ली चाहिए अपनी जान सिंह साहब। फिर मैंने कहा अब मुझे डॉक्टर बन के दिखाना पड़ेगा, इनकी ISC जो है वो इधर रखते हैं ब्यूरोक्रेसी। मैंने कहा आपको क्या चाहिए, जान चाहिए बिल्ली चाहिए? नहीं सब चाहिए तो जान ही लेने आए आपसे, जान मेरी कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो तुरंत उनसे फोन कराया और उन्होंने कहा कि जिस डॉक्टर के पास आपने भेजा था, उन्होंने कहा चारों बिल्लियां हटाइए, घर को पूरा सैनिटाइज करिए। मैंने कहा मेरे रूम में बैठिए, आप चाय कॉफी लंच डिनर सब करिए, लेकिन जब तक घर सैनिटाइज नहीं होगा, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन योर हाउस। सैनिटाइज हुआ और वो हुआ, गए सिंह साहब, और 5 दिन बाद उनका सुबह ही सुबह फोन आ गया, डॉक्टर साहब ये तो 4 ही दिन में 94 हो गई ऑक्सीजन। तो मैंने कहा मैंने तो कहा था 5 दिन की गारंटी दी थी आपको। डॉक्टर साहब मैं आपको डॉक्टर सूर्यकांत नहीं कहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं whenever I will address you, I will say you are my survivor। मैंने कहा वो सब आपकी खैर श्रद्धा है, वो जो कहिए। सिंह साहब 2.5 साल से जिंदा हैं, अच्छे खासे हैं, 96 से नीचे उनकी ऑक्सीजन नहीं आती है। कहने का मतलब ये है कि जीवन में जिस कोई बिल्डिंग हो, 20 मंजिल की बन जाए, 50 की बन जाए, 60 की बन जाए, लेकिन अगर उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो बिल्डिंग न लॉन्ग टर्म होगी न वो अच्छी बनेगी, वो कभी भी ढह जाएगी। मेडिकल प्रोफेशन में भी यही है कि भाई सफाई दवाई का जरूर ध्यान रखना, पढ़ाई का ध्यान रखना, लेकिन सुनवाई का जरूर ध्यान रखना, मरीज से बात करना जरूरी है और प्रॉपर हिस्ट्री करना जरूरी है। ये मैसेज अक्सर मैं जूनियर डॉक्टर्स को देता हूँ, यंग डॉक्टर्स को देता हूँ, लेकिन मेरे बहुत सीनियर भी बैठे हैं, तो मैंने सोचा इसको शेयर करूं। धन्यवाद। Thank you, doctor. Thank you, all of you. This has been so interesting, really. And of course, the message that we take away is that rural healthcare is extremely crucial. We cannot, as a country, progress unless our rural healthcare, the foundation, is strong. On that note, we will close the panel. Thank you so much, the audience, and thank you, panelists.